اگلے ایک ہفتے کے دوران میں گہری نظروں سے خانم کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتی رہی۔ ایک رات خانم گھر پر نہیں تھی اور مجھے اس کے کمرے کی تلاشی لینے کا موقع مل گیا اور میں نے خفیہ تجوری تلاش کر لی جس میں شہزادی کی تاریخی مورتی، قیمتی زیورات اور لاکھوں ریال کی نقد رقم موجود تھی۔ یہ تجوری دیوار میں بنی ہوئی تھی اور اسے چھپانے کے لیے خانم نے اپنی ایک خوبصورت تصویر کا فریم آویزاں کر رکھا تھا۔ اس کی چابی بھی مجھے ڈریسنگ ٹیبل میں مل گئی تھی۔ تجوری کی تلاشی لینے کے بعد میں نے چابی اسی جگہ رکھ دی۔ اس کے 3 دن کے بعد میں شام کو لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ خرم کی گاڑی کوٹھی میں داخل ہوئی۔ خانم اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی۔ خرم گاڑی سے اتر کر سیدھا میرے پاس آ گیا اور محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں بولا، اپنی تیاری مکمل کر لو، آج رات ہم یہاں سے نکلیں گے۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پوچھا اور خانم کا کیا ہوگا؟ خرم نے کہا، اس کا بندوبست میں نے کر لیا ہے، وہ رات 10 بجے کے بعد اس دنیا میں نہیں رہے گی۔ میں کانپ کر رہ گئی۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ایک خادم کو اس طرف آتے دیکھ کر خرم اٹھ کر دوسری طرف چلا گیا۔ خانم 8 بجے کے قریب واپس آئی اور 9 بجے کے قریب وہ پھر چلی گئی۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ شہر سے باہر جا رہی ہے، واپسی میں اچھی خاصی دیر ہو جائے گی۔ خانم کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد میں نے اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ اندر سے بند کیا اور الماری میں سے اپنے کپڑے اور دوسری چیزیں نکال کر سوٹ کیس میں پیک کرنے لگی۔ خرم بھی خانم کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ اس رات میں نے اکیلے ہی بیٹھ کر کھانا کھایا اور وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، عجیب سی وحشت طاری ہو رہی تھی۔ میں کبھی اپنے کمرے میں آ جاتی اور کبھی لان میں آ کر ٹہلنے لگتی۔ ایک خادمہ نے میری اس کیفیت کو نوٹ کر لیا۔ اس نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ 11 بجے کے قریب اس خادمہ نے بتایا کہ خرم فون پر مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں اس وقت لان میں تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اندر گئی۔ ٹیلی فون کا ریسیور میز پر الگ رکھا ہوا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ میری ہیلو کے جواب میں خرم کی آواز آئی، تیار رہنا ہریری، خانم اپنی زندگی کے آخری سفر پر روانہ ہو چکی ہے، میں آدھے گھنٹے میں گھر پہنچ رہا ہوں، اس کے فوراً بعد ہم اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے جواب میں کچھ کہنا چاہا لیکن دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا، چند لمحے وہاں کھڑی رہی اور پھر جیسے ہی پلٹی خادمہ کو کچن کی طرف سے آتے دیکھ کر رک گئی۔ وہ چائے لے کر آ رہی تھی۔ میں اس وقت واقعی چائے یا کافی جیسی کسی چیز کی طلب محسوس کر رہی تھی۔ کیا اس خادمہ کو میری اندرونی کیفیت کا اندازہ ہو گیا تھا؟ اس نے چائے سینٹر ٹیبل پر رکھ دی۔ میں نے صوفے پر بیٹھ کر کپ اٹھا لیا اور ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ مجھ سے چائے نہیں پی جا رہی تھی۔ میں نے بڑے مشکل سے چند گھونٹ بھرے اور کپ میز پر رکھ کر خانم کے کمرے میں گھس گئی۔ میں نے دروازہ بند کر کے بولٹ چڑھا دیا۔ میں خانم کے کمرے میں بلا روک ٹوک آتی جاتی تھی لیکن اس وقت میرے دل میں عجیب سا خوف تھا، جیسے مجھے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جائے گا۔ میں نے الماری میں سے ایک کینوس کا بیگ نکال کر خالی کیا اور دیوار پر آویزاں خانم کی تصویر والا فریم اتار کر تجوری کھولنے لگی۔ اس وقت میرے ہاتھ واضح طور پر کانپ رہے تھے۔ میں نے شہزادی کی مورتی کے علاوہ تجوری میں رکھے ہوئے تمام زیورات اور نقد رقم بھی تھیلے میں ڈال دی اور تجوری بند کر کے فریم دوبارہ اس جگہ پر لٹکا دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے تھیلا سوٹ کیس میں کپڑوں کے نیچے رکھ کر سوٹ کیس لاک کر دیا اور کمرے ہی میں بیٹھ کر خرم کا انتظار کرنے لگی۔ اس وقت مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ ذہن پر خوف طاری تھا اور دل خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میری نظریں بار بار دیوار گیر کلاک کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ خرم نے آدھے گھنٹے کا کہا تھا اور اب 1 گھنٹہ ہونے والا تھا۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ خانم اپنی زندگی کے آخری سفر پر روانہ ہو چکی ہے، لیکن میں اس اگر سے آگے کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی کیونکہ اس اگر سے آگے بھیانک موت بھی ہو سکتی تھی۔ 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ میرے خدشات بڑھتے جا رہے تھے۔ اگر خرم اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس تصور سے ہی میرا دل کانپ اٹھا۔ ایک مرتبہ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے خانم کی تجوری سے جو کچھ بھی نکالا تھا اسے واپس رکھ دوں اور یہاں سے فرار کا خیال ذہن سے نکال دوں۔ چند منٹ اور گزر گئے۔ میں نے سوٹ کیس میں سے تھیلا نکال لیا اور اپنے کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ ایک گاڑی کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہو کر پورچ میں رک گئی۔ خرم کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں تیزی سے دوبارہ کمرے میں گھس گئی اور تھیلا سوٹ کیس میں رکھنے لگی۔ میں کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ خرم بھی پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ بولا، جلدی کرو، تم باہر جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ میں نے کمرے میں جا کر سوٹ کیس اٹھایا اور باہر آ گئی۔ لینڈ کروزر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے سوٹ کیس پچھلی سیٹ پر رکھا اور خود بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ چند منٹ کے بعد خرم برآمدے میں نمودار ہوا۔ اس نے بھی ایک درمیانے سائز کا سوٹ کیس اٹھا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ وہی خادمہ بھی تھی جس نے مجھے چائے پلائی تھی۔ خرم نے جیب سے نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی نکال کر خادمہ کے ہاتھ میں تھما دی، جھک کر اسے بوسہ دیا اور گاڑی کی طرف آ گیا۔
खुर्रम ने जिस अंदाज से खादिमा को बोसा दिया था, उससे मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इनमें पहले ही से कुछ इस किस्म के ताल्लुकात उस्तवार थे। खुर्रम ने भी अपना सूटकेस पिछली सीट पर रखा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी जैसे ही गेट से बाहर निकली, मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। गेट के बिल्कुल सामने स्याह रंग की एक कार ने हमारा रास्ता रोक लिया और उस कार में एक अफसर को देखकर मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। वो बड़ी फुर्ती से अपनी कार से उतर आया। उसके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थी। उसने खुर्रम की तरफ खड़े होकर बड़े रोबदार लहजे में कहा, विलादत खानम कहाँ है? खुर्रम ने कहा, हम उसी के पास जा रहे हैं, आओ बैठ जाओ। वो शख्स ऊपर से घूमकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। राइफल उसने टांगों के बीच में रख ली। वो मुतमईन था जैसे उसे खुर्रम या मुझसे कोई खतरा न हो। खुर्रम गाड़ी को कार से बचाकर गली में ले आया और फिर उसे मुख्तलिफ गलियों में घुमाता हुआ मेन रोड पर आ गया। उस वक्त 1 बजने वाला था। सड़कें सुनसान थी। कभी कभार कोई गाड़ी नजर आ जाती। लैंड क्रूजर शहर से बाहर निकली तो वो कुछ परेशान सा हो गया। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? खुर्रम ने कहा, विलादत खानम अपने चंद गैर मुल्की दोस्तों के साथ महाबाद के एक मकान में मजे उड़ा रही है। आज उसे रंगे हाथों पकड़ने का बेहतरीन मौका है। उसका बहनोई भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकेगा। वो मुतमईन हो गया। महाबाद शहर की एक निवाही बस्ती थी, इसलिए उसे खुर्रम की नीयत पर कोई शुबा नहीं हुआ। लैंड क्रूजर शहर की हुदूद से तकरीबन 3 मील बाहर आ चुकी थी। खुर्रम ने गाड़ी रोक ली, इंजन बंद कर दिया और अचानक ही अफसर की तरफ झुकते हुए उसकी राइफल अपने कब्जे में कर ली। वो राइफल को उसके पहलू से लगाए हुए गुर्राया, नीचे उतरो। अफसर बदहवास हो गया। उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी। खुर्रम ने उसके पहलू पर राइफल से दबाव डाला तो वो दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। खुर्रम भी राइफल संभाले गाड़ी से उतरा। अफसर पहले तो खुर्रम को संगीन नताइज की धमकियां देता रहा, फिर घिघियाने लगा और रहम की भीख मांगने लगा। मुझे उसकी हालत पर हंसी आ गई। दूसरों पर तो उन्होंने कभी रहम नहीं किया था। उन्हें जिस तरह अजियतें देकर हलाक किया जाता था वो सब जानते थे और अब खुद अपनी मौत को सामने देखकर रहम की भीख मांगने लगा था। खुर्रम उसे राइफल की जद पर धकेलता हुआ चंद गज दूर एक खड्ड के किनारे पर ले गया। हेडलैम्प्स की रोशनी में उस शख्स के चेहरे को देखकर लगता था जैसे वो मरने से पहले ही मर गया हो। बेपनाह खौफ था उसकी आंखों में। उसे अंदाजा हो गया था कि मौत कितनी खौफनाक होती है। दफतन फजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। वो लहराता हुआ पीछे खड्ड में जा गिरा। उसकी चीखों की बाज़गश्त देर तक फजा में गूंजती रही। खुर्रम ने राइफल भी खड्ड में फेंक दी और गाड़ी में आकर बैठ गया। उसका चेहरा बिल्कुल पुरसुकून था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने इंजन स्टार्ट करते हुए गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। मैं दहशतजदा सी सीट पर सिमटी बैठी थी। गाड़ी हरकत में आ गई और कुछ ही देर के बाद तेज रफ्तारी से हाईवे पर दौड़ने लगी। खुर्रम ने जो मंसूबा बनाया था उसके मुताबिक हमें अहवाज जाना था और हमारा रुख अहवाज ही की तरफ था। लेकिन खुर्रम बता रहा था कि अब हम अहवाज नहीं जाएंगे। शतुल अरब की तरफ इराक से कई बरसों से जंग जारी है। उस जंग के असरात अगरचे पूरे मुल्क पर हो रहे थे, लेकिन अहवाज, सोसनगर्द और कुर्ब जवार के इलाके बराह रास्त मुतासिर हो रहे थे। इसलिए खुर्रम ने अपना प्रोग्राम तब्दील कर दिया। उस हाईवे पर चंद किलोमीटर का फासला तय करके खुर्रम ने गाड़ी का रुख दाईं तरफ एक ज़ेली सड़क पर मोड़ दिया। ये सड़क छोटे कस्बों और देही इलाकों से होती हुई शादगान की तरफ चली गई। लेकिन हम शादगान की तरफ जाने की बजाय एक और कच्ची सड़क पर होते हुए आबादान से बंदरमाह शहर की तरफ जाने वाली हाईवे पर निकल आए। यही हाईवे साहिल समंदर के साथ साथ बंदर अब्बास तक चला गया था। ईरान की शाहराहों पर सफर करना आसान नहीं था। खुद साख्ता लीडर और पासदारान शाहराहों पर भी गश्त करते रहते थे। उनका काम लोगों को परेशान करने के सिवा कुछ नहीं था। हमारा सफर बहुत तवील था। जगह जगह चेकिंग का अंदेशा था। खुर्रम को भी इन दुश्वारियों का अंदाजा था जो हमें रास्ते में पेश आ सकती थी। हम दोनों में कोई करीबी तो क्या, दूर का भी कोई रिश्ता नहीं था। चेकिंग की सूरत में हम पर बड़ी आसानी से हरामकारी का जुर्म आयद हो सकता था और ऐसे लोगों के साथ जो सलूक किया जाता था उसे बयान करने की जरूरत नहीं। खुर्रम शाहरा से बचकर उन रास्तों का इंतखाब करता रहा जहां चेकिंग का ज्यादा खतरा नहीं था। मैं पिछली सीट पर नीम दराज ऊँघती रही। कभी आंख खुल जाती तो चारों तरफ तारीकी में घूरने लगती। सुबह होने से थोड़ी देर पहले हम बरोस जान पहुंच गए। यहाँ से एक सड़क साहिल समंदर पर वाक़े बूशहर की तरफ चली गई थी, लेकिन हमने उस तरफ का रुख नहीं किया। कस्बे से आगे निकलकर एक पेट्रोल पंप से गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और अहरम की तरफ रवाना हो गए। हम अहरम में भी नहीं रुके। तकरीबन 80 किलोमीटर का फासला तय करके फरमोज नामी कस्बे के निवाह में वाक़े एक छोटे से होटल के सामने खुर्रम ने गाड़ी रोक ली। उस वक्त तक हम तकरीबन 200 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। थकन से मेरी बुरी हालत हो रही थी। अगर हम चाहते तो कस्बे के किसी अच्छे होटल में ठहर कर कुछ देर आराम कर सकते थे, लेकिन वहां चेकिंग का अंदेशा था। हम तकरीबन 1 घंटा उस छोटे से होटल में रुके। नाश्ते के अलावा हमने खाने पीने की कुछ चीजें भी साथ ले ली और उसके बाद हमारा सफर एक बार फिर शुरू हो गया।
बंदर अब्बास अब भी हमसे तकरीबन 800 किलोमीटर के फासले पर था, और ये फासला हमने किस तरह तय किया मैं उसकी तफसील में जाना जरूरी नहीं समझती। दूसरे दिन दोपहर के करीब खुर्रम ने गाड़ी शाहरा से हटाकर दरख्तों के एक झुंड में रोक ली। आसपास कोई आबादी नहीं थी। हम गाड़ी से उतरकर चश्मे के किनारे पर बैठ गए। इस तवील सफर ने मुझे बुरी तरह थका दिया था। मैंने खूब सेर होकर पानी पिया और घास पर लेट गई। मुझे नहीं मालूम कि खुर्रम ने आइंदा के लिए क्या मंसूबा बना रखा था, लेकिन मैंने जो सोच रखा था उस पर अमल करने का वक्त आ गया था। खानम खत्म हो चुकी थी। मैं आबादान से सैकड़ों मील दूर आ गई थी। मेरी माँ का कातिल मेरे साथ था और मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया था कि उससे अपनी माँ के कत्ल का बदला ले लिया जाए। बंदर अब्बास शहर अब चंद मील से ज्यादा दूर नहीं था। मैं तकरीबन 4 साल इस शहर से दूर रही थी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोगों को भी जानती थी जो मुझे पनाह दे सकते थे। हम तकरीबन 2 घंटे दरख्तों के उस झुंड में आराम करते रहे। खुर्रम मुझसे चंद गज के फासले पर चश्मे के किनारे एक पत्थर पर बैठा बार बार कनखियों से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी नजरों से मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आई कि अब चूंकि हमारे लिए कोई खतरा नहीं था, ज़हनी तौर पर कुछ सुकून मिला था, और शायद ये तमानियत ही खुर्रम की नीयत में डांवाडोल की सी कैफियत पैदा कर रही थी। लेकिन मैं भी गैर मोहतात नहीं थी। वो अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आ गया। उसकी नजरों में हवस की चमक बढ़ रही थी। वो जैसे ही मेरे करीब आया मैंने उसके मुंह पर थूक दिया और पूरी कुव्वत से धक्का देकर उसे पीछे गिरा दिया और खुद एक झटके से उठ खड़ी हुई। उसके साथ ही मैंने बड़ी फुर्ती से अपने लिबास में हाथ डालकर पिस्तौल निकाल लिया, जो मैंने ऐसे मौकों के लिए ही छुपा कर रखा था। ये पिस्तौल भी मुझे खानम की तिजोरी से मिला था। खुर्रम पुश्त के बल पड़ा था। उसे शायद मेरी तरफ से किसी ऐसे इकदाम की तवक्को नहीं थी। वो तो शायद ये समझ रहा था कि मैं उससे सीने से लगाकर इजहार मोहब्बत करूंगी। उसकी आंखों में वहशत सी उभर आई, लेकिन मेरे हाथ में पिस्तौल देखकर वहशत खौफ में बदल गई। वो चीखा, ये क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं पूरी तरह अपने हवास में हूँ और अच्छी तरह जानती हूँ कि क्या कर रही हूँ। पागल तो तुम हो। तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं अपनी माँ के कातिल को माफ कर दूंगी? मैं उन लम्हात को कभी नहीं भूली जब तुमने मेरी माँ पर तशद्दुद किया था और उसे घसीटते हुए ले गए थे। उस मासूम और बेगुनाह औरत की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। तुमने कैसे समझ लिया कि मैं अपनी माँ पर होने वाला जुल्म और तशद्दुद भूलकर तुम्हारे साथ रंगरलियां मनाऊंगी? मैं तुम्हारे साथ बेतकल्लुफ हो गई थी तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं था कि मैं तुम्हारे इश्क में मुब्तला हो गई हूँ। मैं तो किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थी। उस शाम पार्क में खानम के खिलाफ साजिश में मुझे अपने साथ शरीक करके तुमने मेरा ये मसला भी हल कर दिया। खानम को तो तुमने ठिकाने लगा दिया और आज तुम्हारी बारी है। मैंने ये तवील अरसा अंगारों पर लौटते हुए गुजारा है। आज मेरी माँ की बेचैन रूह को भी सुकून मिल जाएगा और आज मुझे भी करार आ जाएगा। खुर्रम के लहजे में खौफ नुमाया था। बोली, तुम गलत समझ रही हो हुरैरी। मैंने तुम्हारी माँ को कत्ल नहीं किया था। मैंने तुम्हें बताया भी था कि, लेकिन मैंने ट्रिगर दबा दिया। फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। गोली उसके पेट में लगी। पतलून की जेब की तरफ बढ़ता हुआ उसका हाथ रुक गया और वो उठकर चीखता हुआ एक तरफ भाग खड़ा हुआ। मैं पिस्तौल का ट्रिगर दबाती चली गई। तमाम गोलियां उसके जिस्म में पैवस्त हो गई थीं। वो लड़खड़ा कर गिरा और तड़पने लगा। मैं दौड़कर उसके करीब पहुंची। पिस्तौल का रुख अब भी खुर्रम की तरफ था। उसके जिस्म से बहने वाला खून घास को तर कर रहा था। वो अभी जिंदा था। उसकी आंखें फैली हुई थी। मैंने एक बार फिर ट्रिगर दबा दिया। ये आखिरी गोली उसकी पेशानी में लगी। उसके जिस्म ने झटका लिया और बेहिस्सो हरकत हो गया। मैं चंद लम्हे नफरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखती रही, फिर उसके मुंह पर थूक दिया और पिस्तौल भी उसके करीब फेंक कर चश्मे पर आ गई। हाथ धोए, मुंह पर पानी के छींटे मारे, चंद घूंट पानी के पिए और गाड़ी का ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा था। मैं पथरीले रास्तों पर गाड़ी को हल्की रफ्तार से चलाती हुई हाईवे पर ले आई और फिर उसे तेज रफ्तारी से शहर की तरफ दौड़ा दिया। शहर में दाखिल होने के लिए मैंने एक गैर मारूफ रास्ता इस्तेमाल किया था। सूरज गुरूब हो चुका था। मैंने गाड़ी एक वीरान सड़क पर छोड़ दी और अपना सूटकेस उठाकर एक तरफ चलने लगी। खुर्रम वाला सूटकेस मैंने गाड़ी में ही रहने दिया। वहां से काफी दूर निकल आने के बाद मैं एक टैक्सी में सवार होकर बस स्टैंड की तरफ आ गई और वहां से एक और टैक्सी पकड़कर शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके में आ गई। मैं कई साल बाद बंदर अब्बास आई थी। शहर में कई तब्दीलियां आ चुकी थी। उस गली के मोड़ पर एक पुरानी सी इमारत हुआ करती थी, जिसके नीचे चंद दूसरी दुकानों के अलावा एक बेकरी भी हुआ करती थी। उस बेकरी से मैं अक्सर डबल रोटी लेने के लिए आया करती थी, लेकिन अब वहां कई मंजिला शानदार इमारत थी। कई साल पहले जब हम बंदर अब्बास में रिहाइश पजीर थे तो खानम महर ही वो वाहिद हस्ती थी जिससे मेरी माँ की दोस्ती थी। पापा के कत्ल के बाद जब मूर्ति की तलाश में मुझे और मेरी माँ को कत्ल करने की कोशिश की गई तो खानम महर ने ही हमें शहर से फरार होने में मदद दी थी।
मैं अगरचे कई साल बाद यहाँ आई थी, लेकिन खानम मेहर ने मुझे फौरन ही पहचान लिया। उसने मुझे सीने से लगा लिया और जब मैंने उसे माँ के बारे में बताया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे भी ये जानकर बहुत दुख हुआ कि खानम मेहर भी 2 साल पहले बेवा हो चुकी थी। उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। मुझे वो पहले भी बहुत प्यार किया करती थी और अब भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। वो रात हमने तकरीबन जाग कर गुजारी। पहले चंद बरसों के दौरान हम पर जो बीती थी वो मैंने खानम मेहर को बता दिया और ये भी बता दिया कि मैं आज शाम एक आदमी को कत्ल करके यहाँ आई हूँ। उसके बावजूद खानम ने मुझे सीने से लगा लिया। मैंने सूटकेस में से नकदी और जेवरात वाला थैला निकाल कर खानम के सामने रख दिया और खानम मेहर ने उसे मेरी अमानत कहते हुए हिफाजत से अपने पास रख लिया। अगले रोज अखबार में शहर की एक वीरान सड़क पर खड़ी हुई आबादान की नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी के बारे में खबर छपी कि उस लावारिस गाड़ी में मिलने वाले सूटकेस में से 40 लाख रियाल की रकम बरामद हुई थी। पुलिस गाड़ी के मालिक का सुराग लगाने की कोशिश कर रही थी। अखबार में खुर्रम की लाश का कोई जिक्र नहीं था और मुझे यकीन था कि कई रोज तक उसकी लाश का पता नहीं चलेगा और जब वो मिलेगी तो वो या तो नाकाबिले शनाख्त हो चुकी होगी या ढांचे में बदल गई होगी। मुझे खुर्रम के उस सूटकेस का अफसोस था जो पुलिस के हाथ लग गया था। मुझे यकीन था कि वो दौलत भी खानम की थी जिसे खुर्रम उड़ा लाया था। अगर मुझे पता होता कि उस सूटकेस में इतनी दौलत हो सकती है तो मैं उसे गाड़ी में न छोड़ देती, लेकिन बहरहाल मेरे पास भी दौलत की कमी नहीं थी। मैं जो मंसूबा लेकर बंदर अब्बास आई थी उसके लिए जरूरी था कि मेरी रिहाइश किसी अच्छे और साफ सुथरे इलाके में हो। चुनाचे चंद रोज बाद मैंने खानम मेहर के तवस्सुत से शहर के एक पौश इलाके में एक कोठी किराए पर ले ली और खानम मेहर के साथ वहां मुंतकिल हो गई। खानम मेहर ने अपने उस आबाई मकान को ताला लगा दिया। खानम मेहर ही के तवस्सुत से एक काबिल एतमाद मुलाजिमा और खादिम को भी रख लिया। चंद रोज मजीद आराम में गुजरे और फिर मैंने अपने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। मुझे मायूसी नहीं हुई। चंद ही रोज के बाद मुझे पता चल गया कि रजा मुराद आजकल बंदर अब्बास ही में है। उसे तलाश करने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। मैंने रजा मुराद के बारे में मालूमात हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। रजा मुराद अब भी उसी कारोबार से वाबस्ता था, यानी नवादिरात की खरीदो फरोख्त और स्मगलिंग। वो ईरान के मुख्तलिफ इलाकों से तारीखी नवादिरात खरीदता और उन्हें गैर मुल्की एजेंटों के हाथ फरोख्त कर देता। ये नवादिरात पहले समंदर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाए जाते और फिर पाकिस्तान से दूसरे ममालिक को स्मगल किए जाते। पाकिस्तान भी उन दिनों तारीखी नवादिरात की खरीदो फरोख्त और स्मगलिंग का बड़ा मरकज बना हुआ था। अफगानिस्तान में जंग की वजह से न सिर्फ वहां की मईशत तबाह हो चुकी थी बल्कि वहां की सकाफत और सकाफती विरसे को भी शदीद नुकसान पहुंचा था। काबुल का अजायब घर रूसी फौज की बमबारी के बायस तबाह हो गया था। रही सही कसर अफगानों की खाना जंगी ने पूरी कर दी। अजायब घर में भरी हुई चीजें बेदर्दी से लूटी गईं। बहुत सी नादिर और कीमती अशिया रूसी ले गए। बची कुची चीजें आम लोगों ने लूट ली। जिनके पास लूट की ऐसी चीजें मौजूद थीं वो उन्हें एक वक्त की रोटी के बदले में फरोख्त कर रहे थे। महात्मा बुद्ध की एक कद्दे आदम मूर्ति सिर्फ एक डबल रोटी के बदले फरोख्त की गई थी। पाकिस्तान में तारीखी नवादिरात के स्मगलर इस सूरत हाल से फायदा उठा रहे थे। दुनिया के कई ममालिक के अजायब घरों के एजेंट पेशावर में जमा थे। वो ऐसे लोगों की तलाश में रहते जो अफगानिस्तान से इस किस्म की चीजें चुरा कर लाए हों। रजा मुराद और उसके एजेंट कराची की तरफ सरगर्म थे। यहाँ उन्हें अपनी चीजों के गाहक आसानी से मिल जाते थे। बहरहाल रजा मुराद के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर लेने के बाद मैंने उससे राब्ता किया। उससे मेरी पहली मुलाकात एक तकरीब में हुई। बातों ही बातों में मैंने उसे बताया कि मेरे पास भी एक शाहकार मौजूद है। मैंने उसे अगले रोज अपने घर आने की दावत दी और जब मैंने उसे शहजादी की मूर्ति दिखाई तो वो उछल पड़ा। उसके पूछने पर मैंने बताया कि ये मूर्ति मुझे आबादान में एक ऐसी औरत ने दी थी जो जिंदगी के आखिरी सांस ले रही थी। रजा मुराद उस मूर्ति को खरीदना चाहता था। मैंने जब कीमत दरियाफ्त की तो उसने कहा, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख। मैंने कहा मैं ये मूर्ति तुम्हें देने को तैयार हूँ। लेकिन उसने पूछा लेकिन क्या? उसका ख्याल था कि मैं इतनी कीमत बताऊंगी या कोई ऐसी शर्त रखूंगी जिसे पूरा करना उसके लिए मुमकिन ना हो। मैंने कहा मैं तुमसे इसकी कोई कीमत नहीं लूंगी। वो उछल पड़ा, बोला क्या? मैंने कहा मेरे पास दौलत की कमी नहीं है। मैं ये मूर्ति उस शख्स के हवाले करना चाहती हूँ जो इसकी कदर जानता हूँ। मैं तुम्हारी बातों से मुतमईन हूँ, इसलिए इस मूर्ति को मेरी तरफ से तोहफा या नजराना समझकर अपने पास रख सकते हो। वो उछल पड़ा, बोला क्या? उसके चेहरे पर सनसनी के तासुरात थे। बोला मैं इस मूर्ति के लिए 30 लाख रियाल की पेशकश कर चुका हूँ, लेकिन इसकी कीमत इससे भी कहीं ज्यादा है और तुम किसी। मैंने उसकी बात काटी, कहा मैं दोस्ती को ज्यादा अहमियत देती हूँ और दोस्ती में दिए जाने वाले तोहफों की कीमत नहीं लगाई जाती। रजा मुराद ने कहा तो फिर आज से हमारी दोस्ती पक्की। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। मैंने बड़ी गर्मजोशी से उसका हाथ थामा और इस तरह हमारी दोस्ती का आगाज हुआ।
नवादिरात की स्मगलिंग से कतई नजर रजा मुराद शरीफ आदमी था, मुखलिस और काबिल एतमाद। वो मुझ पर भी मुकम्मल भरोसा करने लगा। चंद ही रोज के बाद मैं अपना किराए का मकान छोड़कर उसकी शानदार कोठी में मुंतकिल हो गई। हम दोनों अगरचे एक ही घर में रह रहे थे, लेकिन उसने कभी मैली आंखों से नहीं देखा। हम घंटों एक दूसरे से बातें करते रहते। रजा मुराद भी मुझ पर उसी तरह एतमाद करने लगा कि वो अपनी बिजनेस की बातें भी मुझे बताने लगा, और फिर उसने मुझे अपने बिजनेस में शरीक कर लिया। शिराकतदारी बस ऐसी ही थी। वो हर बात मुझे बता देता, कौन सी चीज कहाँ और किस जरिए से मिल सकती है और उसे किन जराए से फरोख्त किया जा सकता है। मैं उन लोगों से भी मिलने लगी जो उसके साथ इस बिजनेस में शरीक थे। एक साल के अंदर अंदर मैं नवादिरात के इस बिजनेस के नशेबो फराज से वाकिफ हो चुकी थी। रजा मुराद की उम्र उस वक्त 60 से कुछ ऊपर थी। वो बज़ाहिर तंदुरुस्त था, लेकिन शराब ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। एक मर्तबा वो बीमार हुआ तो फिर उठ न सका। इलाज के लिए तेहरान से 2 डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन उसका वक्त पूरा हो चुका था। 20-22 रोज बीमार रहने के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। रजा मुराद की मौत के बाद मुझे उस सिंडिकेट का चेयरपर्सन मुंतखब कर लिया गया, लेकिन 2 आदमियों ने बगावत कर दी। वो अपना हिस्सा लेकर सिंडिकेट से अलग हो गए और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी। मेरे साथ जो आदमी रह गए थे वो अगरचे इस बिजनेस के नशेबो फराज से वाकिफ थे, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं थे। चंद महीनों की जिद्दोजहद के बाद मैं बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हो सकी। मैं उन दिनों जाहिदान से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर सिस्तान के एक कदीम शहर सोख्ता में झील के किनारे पर खुदाई कर रही थी। उस इलाके में पहले भी कई मर्तबा खुदाई हो चुकी थी और बाज कीमती नवादिरात बरामद हुए थे। मैंने जिस मकाम पर खुदाई करवाई थी वो उस जगह से काफी दूर थी, और उस खित्ते के बारे में एक सरकारी माहिर आसार कदीमा की खुफिया सर्वे रिपोर्ट मैंने 2 लाख रियाल में खरीदी थी। उस माहिर आसार कदीमा ने यकीन दहानी करवाई थी कि यहाँ से हमें बहुत कुछ मिलेगा। तकरीबन 1.5 महीने से खुदाई का काम जारी था। मैं जाहिदान में कैंप लगाए हुए थी। खुदाई के बारे में हौसला अफजा रिपोर्टें मिल रही थी। धात के चंद टूटे फूटे ज़रूफ बरामद होने की इत्तला पाकर मैं भी शहर सोख्ता पहुंच गई। हमारा कैंप शहर से तकरीबन 20 मील दूर था। वहां पहुंचकर इंकिशाफ हुआ कि खुदाई के दौरान चंद और चीजें भी बरामद हुई हैं, और फिर उसी रात मेरी मौजूदगी में एक ताबूत भी बरामद हुआ। लकड़ी का ये ताबूत टूटा फूटा था। उसके साइज और हजम से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसमें किसी बच्चे को दफन किया गया होगा, लेकिन बाद में लाश उस ताबूत से निकाल ली गई थी या चोरी कर ली गई थी। बहरहाल हमने उस इलाके में खुदाई जारी रखी। मुझे तवक्को थी कि ऐसी ही कोई और चीज जरूर मिलेगी। मैं 3 दिन कैंप में मुकीम रही और फिर जाहिदान आ गई। जाहिदान पहुंचने के तीसरे रोज मुझे एक और सनसनीखेज इत्तला मिली। जो शख्स इत्तला लेकर आया था उसने बताया कि खुदाई में एक और ताबूत बरामद हुआ है जिसमें एक औरत की मम्मी भी मौजूद है। मैं अगले ही रोज वहां पहुंच गई, लेकिन एक और सनसनीखेज इत्तला वहां मेरी मुंतजिर थी। कैंप के 2 आदमी गुज़श्ता रात मम्मी वाला ताबूत लेकर गायब हो गए थे। पुलिस को भी किसी तरह ये खबर मिल गई थी। उस वक्त पुलिस की एक पार्टी भी कैंप में मौजूद थी। हम गैर कानूनी तौर पर खुदाई कर रहे थे। पुलिस हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखती थी, लेकिन मैंने मामले को संभाल लिया और इसके लिए मुझे 50,000 रियाल खर्च करने पड़े। पुलिस ने हमारा पीछा तो छोड़ दिया, लेकिन ताबूत की चोरी की तहकीकात से दस्तबरदार नहीं हुई। मैं जानती थी कि अगर तहकीकात जारी रही तो मामला बहुत आगे निकल जाएगा और हम भी अपने आप को अलग नहीं रख सकेंगे। पुलिस को तहकीकात से रोकने के लिए मुझे मजीद 20,000 रियाल की कुर्बानी देनी पड़ी।